Hello everyone, this is Professor Jagdish Pimple from NIT Nagpur. I request you to kindly like, share and subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you will get the live update notification about the channel. Thank you. Okay, so hello everyone, very good morning to one and all. Today we are going to see about the quicksort method. In the previous video, we have already gone through the bubble sort method, selection sort method, insertion sort method, as well as the function with respect to insertion sort method, selection sort method, and bubble sort method. We have also executed or we have also solved the example using bubble sort, selection sort, as well as insertion sort method. In today's lecture, we will see what it means a quicksort method. We'll see one of the type of sorting method, that is a quicksort method. So basically what it means a quicksort method. Quicksort is a one इंटरनल सॉर्टिंग मेथड क्विकसॉर्ट ये एक इंटरनल सॉर्टिंग मेथड्स के अंदर आता है और इट इज कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन एज एन इंटरनल सॉर्टिंग मेथड क्विकसॉर्ट इट इज वन ऑफ द इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स why it is internal sorting techniques because the quicksort will be applied on a small amount of data and when the data will occupy in the primary memory at the time of execution. So that type of sorting technique, we are calling it as an internal sorting method. So quicksort, it is one of the internal sorting techniques. So with the help of quicksort, we are going to arrange the data either in ascending or descending order. With the help of quicksort mechanism or with the help of quicksort technique, we are going to sort data, we are going to arrange the data either in ascending or in descending manner. So basically, quicksort is a very efficient sorting algorithm invented by CAR Hoare. It has two phases. If we are talking about the quicksort method, it is invented by CAR Hoare. While using the sorting techniques, while using the quicksort method, so there are two phases to sort the given set of elements using quicksort methods. So these phases are one of is partition phase and another is sorting phase. So how that phase is actually executed, we will see stepwise in an example. As we will see, most of the work is done in the partition phase. It works out where to divide the work. The sort phase simply sort the two smaller problems that are generated in the partition phase. Basically what it means. The quicksort technique or the quicksort mechanism will use the divide and conquer strategy. The basic phenomena by using the quicksort method, it is always uses the divide and conquer strategy. And it is one of the example of recursion. While we are developing the program for quicksort, we will use the concept of recursion because whenever we are using a divide and conquer strategy, at that time we need to use a recursion. And that recursion is nothing but a function call itself, that means a recursion. So basically what it means a divide and conquer strategy? As you already know, divide and conquer strategy, suppose if you are having a big problem, if you are having the number of elements given to you, and if you ask to sort the given set of element in ascending order using the quicksort method, so what you are going to do? What divide and conquer strategy will do? Divide and conquer strategy क्या बोलता है? First of all, you have to conquer the data. First of all, you have to just a second. So in quicksort, we are having the two phases. The first one is partition phase and another is sorting phase. So what divide and conquer strategy will do? Divide and conquer strategy क्या करता है? First of all, it will divide the whole problem into the smaller subset. The complete problem is divided into the two parts. ठीक है? फिर उसका हम लोग एक पार्ट उठाते हैं. We have to execute the same. ठीक है, जैसे एक बड़ा प्रॉब्लम है उसके हमने दो पार्ट्स में डिवीजन किए. देन वी हैव टू फेच द फर्स्ट पार्ट, वी हैव टू अप्लाई द क्विकसॉर्ट अगेन वो जो आपको फर्स्ट पार्ट मिला था उसके फिर से यू हैव टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. अगेन यू हैव टू फेच द फर्स्ट पार्ट, अगेन यू हैव टू सॉर्ट यूजिंग द क्विकसॉर्ट मेथड. So likewise, that means divide and conquer strategy. That means you have to fetch a particular part, apply the same logic, apply the same technique. Again, you have to divide that whatever array you will get. Again, you have to divide that things into the two parts. Again, you have to fetch the part, and again you have to apply the sorting techniques. So that was a divide and conquer.
Divide and conquer means you have to divide the things. That means divide the particular things or divide an array into two parts every time. हर एक बार आपको आपका पार्ट डिवाइड करते चलना है एंड फाइनली यू विल गेट द रिजल्ट. एक एक आपका अरे में जो डेटा है, अरे में जो एलिमेंट्स है, वो आपका सॉर्टेड ऑर्डर में आते जाएगा. ठीक है. सो इट विल मोर क्लियर व्हेन वी सी द एग्जांपल. ओके. सो three particular point you have clear. Divide and conquer strategy will be used by quicksort. Okay. After that, recursion techniques is also used by the quicksort method. If you're talking about the complexity of the quicksort method is, you already know if the particular any algorithm uses divide and conquer strategy. जो भी algorithm आपका divide and conquer strategy use करता है, ठीक है, जो भी technique divide and conquer strategy algorithm use करता है, it means that is complexity always the log n and log n. So base case complexity of the quicksort is n log n, average case is n log n, and the worst case complexity of worst case of time complexity of quicksort is big of n square, because it is a burst means सबसे लास्ट वाला यानी आखिरी तक कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है, that is nothing but a big of n square. Okay. And what is the minimum time? Minimum time is big of n log n. And whenever we are using a divide and conquer strategy, always the complexity of big of log n. Okay. Now we'll see simple example. Okay. It is little bit difficult, but you have to concentrate. Okay, we'll see example first. After that, I will tell you about the function, how we are going to write down the function. Now see, suppose the elements are given to you like this. आपको इस तरीके से elements given है. 54, 26, 93, 17, 77, 31, 44, 55, and 20. So total how many elements are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 elements are there. Total 9 elements are given to you. So particular this problem will be solved in two different methods, using the two different methods. There are three parameters, or we can say there are 3 pointers we are using. Listen very carefully. The first one is your pivot value. पहला होता है आपका pivot value. Second होता है आपका left value और low value. Okay. और last pointer होता है आपका right pointer या फिर high value. These 3 pointers are very, very important. P stands for pivot, L stands for left or low, R stands for right, or instead of R you can say H, that is high. Depends on you. You can give a pointer name as per your choice. जो आपको pointer का नाम देना है, you can give it. This quicksort technique or quicksort method जो हम लोग यूज करते हैं, there are 2 different ways to sort array element using the quicksort. Either you have to consider the pivot element as the first element. आप pivot को first element consider करना है, ठीक है? How we are going to sort the array element using the quicksort using the pivot as the first element. Okay, we will see pivot as the first element. So here first element always will be considered as a pivot element. यहाँ पे जो आपका ये पहला एलिमेंट दिया हुआ है, that element we are always considered as a pivot element. पहला एलिमेंट हमेशा आपका पाइवोट रहेगा. जस्ट पाइवोट के बाजू वाला जो एलिमेंट होगा, that is known as a left element. जस्ट बाजू वाला क्या रहेगा? लेफ्ट एलिमेंट. आफ्टर दैट जो आखिरी में होगा, that element is the rightmost element. ये आपका L है और ये आपका rightmost element है. For the 3 pointer, the very first one is pivot. First element is a pivot element. Always you should consider as first element as a pivot element. पहला element हमेशा pivot रहेगा. Pivot के just बाजू वाला जो element रहेगा, that is nothing but a left element. That is nothing but a left mark element of the left element. And जो last वाला element रहेगा, that is called as a right element. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग right element. Now we have to start the logic. We have to see the how quicksort will work. अभी एक बार हमारे पॉइंटर नॉमिनेटेड हो गए, the first element as a pivot, उसके बाजू वाला लेफ्ट और आखिरी वाला राइट.
Now what you have to do, you have to check the value which is pointed by left pointer and r pointer, that is right pointer. आपको अभी क्या चेक करना है, l किसको पॉइंट कर रहा है और r किसको पॉइंट कर रहा है. Now you have to check the condition. What you have to check the condition, always left value should be greater than the pivot value. हमेशा आपकी l की वैल्यू पाइवोट से बड़ी होनी चाहिए. Always you need to check the condition, your left value always greater than the pivot value. अगर नहीं मिलता है तो आपको लेफ्ट को आगे आगे बढ़ाते चलना है. यानी नाउ यू हैव टू चेक व्हाट एल इज पॉइंटिंग टू 26. एल किसको पॉइंट कर रहा है, 26 को पॉइंट कर रहा है. नाउ यू हैव टू चेक 26 पाइवोट से बड़ा है या छोटा है. पाइवोट में वैल्यू कौन सा है, पाइवोट में वैल्यू 54 है. 54 इज द पाइवोट वैल्यू. लेफ्ट किसको पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट पॉइंट कर रहा है 26 को. सो यू हैव टू चेक 26 greater than 54. नो, कंडीशन इज फॉल्स. कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको लेफ्ट को फिर से एक से आगे बढ़ाना है. दैट मींस लेफ्ट अभी यहां चले गया, लेफ्ट अभी कहां पे आ गया, 93 पे. सो नाउ यू हैव टू चेक 93 इज ग्रेटर देन द पाइवोट और नॉट. पाइवोट पे कितना है, 54 है, ठीक है, और आपका लेफ्ट पे कितना है, आपका लेफ्ट पे है 93. तो चेक 93 54 से बड़ा है छोटा है, बट ऑब्वियस 93 इज ग्रेटर देन 54. सो वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड. आपने क्या किया, लेफ्ट पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, वो वैल्यू को आपने चेक किया वेदर दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन द पाइवोट वैल्यू. अगर आपका लेफ्ट का वैल्यू पाइवोट से छोटा होता है तो आपको लेफ्ट को आगे आगे बढ़ाते लेके चलना है. कहां तक जाना है, जहां तक आपको लेफ्ट का वैल्यू पाइवोट से बड़ा नहीं मिलता है तब तक. एवरीबॉडी गॉट इट. So now we have moved the left pointer towards the right direction. तो हमें यहाँ पे इस particular position पे 93, so 93 is greater than the pivot value. 93 pivot से बड़ा मिल गया. That means one condition is satisfied. एक condition satisfied हो गया L का. अभी right पे चलते हैं हम लोग, ठीक है. Now right is pointing to 20. हमें right की वैल्यू हमेशा pivot से छोटी चाहिए, लेफ्ट की वैल्यू हमेशा बड़ी चाहिए, राइट की वैल्यू हमेशा हमें छोटी चाहिए पाइवोट से. गॉट द कंडीशन. नाउ व्हाट आर इज पॉइंटिंग, आर इज पॉइंटिंग टू 20. आर इज पॉइंटिंग टू 20, आर 20 को पॉइंट कर रहा है. तो 20 54 से बड़ा है छोटा है, पाइवोट का वैल्यू कौन सा है, 54 है. सो 20 54 से छोटा है बड़ा है, छोटा है. सो यहाँ पे हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, हमें आर का वैल्यू छोटा ही चाहिए, तो आर का वैल्यू हमें छोटा मिल गया. सो बोथ द कंडीशंस आर ट्रू. दैट मींस एल का कंडीशन भी आपका चेक हो गया, राइट हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो गया, और आर का भी कंडीशन आपका सेटिस्फाइड हो गया. सो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एल का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि एल की वैल्यू आपको पाइवोट से बड़ी चाहिए, आर का भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया कि आर का वैल्यू पाइवोट से छोटा चाहिए. तो आर 20 को पॉइंट कर रहा है तो 20 54 से छोटा है, और एल आपका 93 को पॉइंट कर रहा है तो 93 54 से बड़ा है. दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए. सो दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो आपको किसको किसको स्टॉप करना है, आपको एल और आर की वैल्यू को स्टॉप करना होता है. क्या होता है, जब आपका लेफ्ट का वैल्यू और राइट का वैल्यू दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लेफ्ट की वैल्यू बड़ी है, राइट की वैल्यू छोटी है पाइवोट से, तो फिर आप लेफ्ट और राइट को एक्सचेंज कर दो. लेकिन कब, लेफ्ट और राइट को एक्सचेंज कब करोगे, जब वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं हुए तब. स्टेडी स्टेट, दैट मींस ये अभी देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ पे आपका एल है, यानी आपका आर और एल क्रॉस हुआ क्या एक दूसरे को, एल इधर चले गया और आर इधर आ गया, ऐसे हुआ है क्या, नहीं हुआ है. ठीक है. सो जब आपका एल और आर का कंडीशन सेटिस्फाइड होगा विदाउट क्रॉसिंग, लिसन वेरी केयरफुली, एल और आर सेटिस्फाइड द कंडीशन, जब आपका एल और आर का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया विदाउट क्रॉसिंग, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं हुए, तो आपको किसको किसको स्टॉप करना है, आपको लेफ्ट और राइट को स्टॉप करना है. तो लेफ्ट में वैल्यू कौन सा है 93, राइट में वैल्यू कौन सा है 20. तो अभी इसको स्टॉप करेंगे तो 20 93 की जगह जाएगा और 93 20 की जगह जाएगा. तो देखिए 93 यहाँ पे नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पे 20. नाउ यू कैन सी हियर, यू कैन सी कि यहाँ पे 20 यहाँ पे था तो 20 आपका यहाँ पे आ गया है. ठीक है. और 93 की जगह यहाँ पे 20 था तो यहाँ पे आपका 93 आ गया. गॉट द पॉइंट. नाउ अगेन द सेम सिचुएशन. ठीक है.
यहाँ पे आपका ये पाइवोट वैल्यू कांस्टेंट है, पाइवोट सेम है, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपका एक्सचेंज हुआ था, तो ये आपका L था और ये आपका R था, ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू चेक बट L इज पॉइंटिंग टू 20, लेकिन लेफ्ट का वैल्यू हमें पाइवोट से बड़ा चाहिए। पाइवोट का वैल्यू क्या है 54 है, L का वैल्यू क्या है 20 है, तो 20 54 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो हमें छोटा वैल्यू चाहिए क्या L का, नहीं, हमें L का हमेशा वैल्यू बड़ा चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पाइवोट। तो अभी L को मैं आगे बढ़ाऊंगा, तो L अभी कहाँ पे चले जाएगा, ये 17 पे चले जाएगा। L को मैंने यहाँ पे आगे बढ़ाया तो ये 17 पे चले गए। नाउ यू हैव टू चेक 17 इज ग्रेटर देन 54, नो, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, तो अगेन फिर से मैं L को आगे बढ़ाऊंगा, तो L मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो L मेरा सपोज यहाँ पे आ गया 77 पे। सो नाउ चेक L किसको पॉइंट कर रहा है अभी 77 को, सो 77 इज ग्रेटर देन 54 और नॉट, यस, बट ऑब्वियस 77 इज ग्रेटर देन 54, वन कंडीशन इज सेटिस्फाइड, L का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। जब तक बड़ा नंबर नहीं मिलता पाइवोट से, तब तक आपको क्या करना है, L को आगे बढ़ाते लेकर चलना है। सो 77 आपको ग्रेटर नंबर मिल गया विद रिस्पेक्ट टू पाइवोट, L का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अभी R का कंडीशन देखिएगा, R इज पॉइंटिंग टू 93, सो 93 पाइवोट से क्या है, बड़ा है, लेकिन R का वैल्यू हमेशा हमें क्या चाहिए, छोटा चाहिए, किससे, पाइवोट से। तो R किसको पॉइंट कर रहा है 93 को, 93 54 से बड़ा है, हमें बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए, हमें छोटा वैल्यू चाहिए, तो नाउ वी विल मूव R टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है, R को आगे आगे मूव करेंगे, तो R अभी 55 को पॉइंट कर रहा है। चेक 55 इज ग्रेटर देन 54, ठीक है, लेकिन हमें R का वैल्यू क्या चाहिए, छोटा चाहिए, ठीक है, तो 55 54 से बड़ा है, तो अगेन R को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे एक से आगे, तो अभी R कहाँ पे चले गया, 44 पे चले गया। नाउ R इज पॉइंटिंग टू 44, R इज पॉइंटिंग टू 44, R 44 को पॉइंट कर रहा है, तो चेक 44 54 से छोटा है, यस, 44 इज लेसर देन 54, 44 आपका स्मॉल वैल्यू है, यानी दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो गई। L की कंडीशन 77 पे सेटिस्फाइड हुई थी और R की कंडीशन 44 पे सेटिस्फाइड हुई, क्रॉस हुए क्या एक दूसरे को, नहीं, स्टेडी स्टेट पे है अभी, L इधर नहीं गया और R इधर नहीं है, स्टेडी स्टेट पे है, ठीक है। So that means you need to change the value of L and R. So अभी क्या होगा, 44 77 की जगह जाएगा और 77 44 की जगह जाएगा, ये दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, ठीक है। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे देखिएगा 44, यहाँ पे देखिए 44 इधर आ गया और 77 इधर चले गए, देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। चेंज होने के बाद नाउ अगेन दिस वन इज योर पाइवोट वैल्यू, ये आपका पाइवोट वैल्यू है, ठीक है, ये P है आपका, this one is your pivot value, this one is your left value, ठीक है। यहाँ पे आपका L था और यहाँ पे आपका 77 पे भी, यहाँ इस पोजीशन पे R था आपका, ठीक है। नाउ अगेन द सिमिलर कंडीशंस यू नीड टू चेक, सिमिलर स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। चेक L इज पॉइंटिंग टू 44, सो 44 54 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो L को आगे बढ़ा लो, L अभी 31 पे चले गए, L अभी 31 पे चले गए, सो 31 54 से बड़ा है क्या, नहीं है, फिर से आप L को आगे बढ़ा लो, L अभी यहाँ पे आ गए, R के जगह आ गए, सो L इज नाउ 77, 77 इज ग्रेटर देन 54, कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। सो L का कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, यहाँ पे मेरा L आ चुका है, ठीक है, इस पोजीशन पे मेरा L आ चुका है, ठीक है। नाउ R इज पॉइंटिंग टू 77, R किसको पॉइंट कर रहा है 77 को, सो चेक 77 इज लेस देन 54, नो, 77 54 से छोटा है क्या, नहीं, हमें R का वैल्यू हमेशा छोटा चाहिए पाइवोट से, ठीक है, लेकिन आपका R 77 को पॉइंट कर रहा है, तो 77 छोटा है क्या, नहीं, तो 77 को आगे बढ़ाओ, तो 77 को आगे बढ़ाया तो यहाँ पे आपका R आ गया, सॉरी R को आगे बढ़ाया तो R आपका यहाँ पे आ गया, R इज पॉइंटिंग टू नाउ 31, R is pointing to 31. So R 31 को पॉइंट कर रहा है। Now you have to check. 31 is lesser than 54. 31 आपका 54 से छोटा है, तो कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। लेकिन देखिए कंडीशन कब सेटिस्फाइड हो गई, L इधर आ गया, L इधर चले गया और R इस साइड में आ गया, यानी एक दूसरे को क्रॉस कर गया L और R। दैट मींस R यहाँ पे 77 पे था तो R इधर आ गया टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन और R टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन चले गया, दोनों एक दूसरे को क्रॉस हो गए, कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, लेकिन कब हुई, दोनों L और R दोनों काउंटर ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, उसके बाद आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड। सो ऐसा जब कंडीशन आता है
जब एल और आर एक दूसरे को स्वैप कर जाते हैं, एल और आर एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं, at that time you have to swap your p value, that means pivot value, with your r value. आपको किसको किसको स्वैप मारना है? जब आपका l और r एक दूसरे को क्रॉस हो जाएगा और कंडीशन क्रॉस होने के बाद सेटिस्फाइड हो जाएगी, एट दैट टाइम आपको पाइवोट की वैल्यू आपके राइट पॉइंटर के साथ स्वैप करना है. सो राइट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू 31. राइट पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? 31 को पॉइंट कर रहा है. ये राइट पॉइंटर है आपका 31 और आपका पाइवोट कौन सा है? 54 है. यानी 31 की जगह 54 जाएगा, 54 की जगह 31 जाएगा. सो नाउ हियर यू कैन सी, हियर यू कैन सी यहाँ पे 54 आ गया और यहाँ पे 31 आ गया. चेंज कर लिया. ठीक है, दैट इज पाइवोट वैल्यू विद आर वैल्यू स्टार्ट कर दिया. ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाता है तो आप लेफ्ट और आर को, लेफ्ट और राइट की वैल्यू को एक्सचेंज करते हो. लेकिन लेफ्ट और राइट आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है आफ्टर क्रॉसिंग. आफ्टर क्रॉसिंग के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आपको पाइवोट के साथ आपकी राइट वैल्यू चेंज करनी है, एक्सचेंज करनी है. सो आपका 54 आर की जगह आ गया. ठीक है, और यहाँ पे 31 पाइवोट की जगह चले गया. नाउ यहां से जब भी आपका ये कंडीशन ऐसा आएगा, जब भी आपका कंडीशन पाइवोट के साथ आर वैल्यू स्वैप होगा, सो एट दैट टाइम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे आपका पाइवोट वैल्यू एक्सचेंज हुआ है, दैट मींस आपका 31 जहां पे था आर वैल्यू, वहां पे आपका 54 आ गया. दैट मींस ये जो 54 वैल्यू है, सो नाउ इट इज हैविंग द फिक्स पोजीशन. यानी 54 आपका सॉर्टेड में आ चुका है. अभी आप 54 को सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये 54 आपका सॉर्ट में आ गया. जहां पे भी आपका पाइवोट वैल्यू एक्सचेंज हुआ है, दैट मींस वो वैल्यू आपका फिक्स पोजीशन हो गया. वहां से आपके अरे के दो पार्ट में डिवीजन हो जाएंगे. दैट मींस ये इतना एक पार्ट, ये यहां से यहां तक एक पार्ट मिला और यहां से यहां तक दूसरा पार्ट मिला. सपोज यू सेड दिस वन इज अ P1 पार्ट एंड दिस वन इज अ P2 पार्ट. लाइक दैट. गॉट इट? ये आपका P1 पार्ट है और ये आपका P2 पार्ट है. सो नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्विकसॉर्ट पार्टीशनिंग, अभी आपके अरे के दो पार्ट में डिवीजन हुए, पार्टीशन हुए. ठीक है, आपने पहले क्या किया? पाइवोट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया. लेफ्ट की वैल्यू आप चेक करते गए कि बड़ी है या नहीं है, राइट की वैल्यू आप चेक करते गए छोटी है या नहीं है. आपकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, आपकी स्टेडी स्टेट में कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, तो आपने क्या कर दिया? एल और आर को एक्सचेंज कर दिया. लेकिन एक दूसरे को, एल और आर ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया. क्रॉस करने के बाद कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो आपने पाइवोट को एक्सचेंज किया राइट के साथ. एक्सचेंज करने के बाद आपके अरे के दो पार्ट में डिवीजन हो गए, दैट इज पार्टीशन हो गया. पार्टीशन होने के बाद नाउ व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू पिक दिस पार्ट. ये इतना पार्ट आप उठाइए 44 तक, इतना पार्ट उठाइए. यानी ये आपका एक पार्ट ये इतना यहाँ से उड़ गया. फिर ये पार्ट के ऊपर फिर से आप क्विकसॉर्ट अप्लाई करिए. यानी अगेन this one is my pivot value, 31 is a pivot value, this one is a left value and last one is a right value. Again you have to follow the same rule. लेफ्ट को आगे आगे बढ़ाइए, लेफ्ट की कंडीशन चेक करिए कि पाइवोट से बड़ी है या नहीं मिली, बड़ी है या नहीं है. वैसे राइट का आप कंडीशन चेक करिए, राइट का वैल्यू बड़ा है छोटा है. ठीक है, जब तक आपको राइट को टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन मूव करना है, तब तक जब तक वैल्यू आपको पाइवोट से छोटा नहीं मिलता. ऐसे करते करते फिर से आपका ये जो अरे बना हुआ है, इसमें फिर से आपको दो पार्ट्स मिलेंगे. ऐसे करते करते आपका एक एक एलिमेंट सॉर्ट होते जाएगा. तो ऐसे आपने एक P1 पार्ट उठा लिया, ऐसे सिमिलरली आप ये सेकंड पार्ट उठाएंगे 77, 55, 93, ये दूसरा पार्ट उठाएंगे आप. अगेन यहाँ पे फिर से क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे आप. तो अगेन दिस वन इज योर पाइवोट वैल्यू. अगेन दिस वन इज योर, अगेन दिस वन इज योर पाइवोट वैल्यू. 77 पाइवोट है, ये आपका 55 एल वैल्यू है और 93 आपका आर है. अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम रूल. चेक द कंडीशन whether the L value is greater than the pivot value or not. नहीं है तो आगे बढ़ाओ. वैसे फिर R का वैल्यू, ठीक है, R का वैल्यू हमेशा हमको पाइवोट से छोटा चाहिए. चेक करते जाइए. ठीक है, अगर कंडीशन मिला तो स्वैप करना है, नहीं मिला तो पाइवोट के साथ लोग क्या स्वैप करना है? R वैल्यू स्वैप करना है. लाइकवाइज ऐसे करते 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 आपका एक एक एलिमेंट सॉर्टेड में आते जाएगा एंड फाइनली यू विल गेट अ सॉर्टेड एलिमेंट. फाइनली यू विल गेट अ सॉर्टेड वैल्यू. Hope everybody got it. Now we will see the function for the quicksort. So ऐसे करते करते आपके सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सॉर्टेड में. Now we will see the quicksort function very easily. Okay, we'll take a quick review. Okay, void quicksort. Quicksort is the name of the function. After that,
व्हाट वी विल रिक्वायर्ड वन अरे, एक फर्स्ट वैल्यू लगेगा, लास्ट वैल्यू लगेगा, एक अरे लगेगा जिसमें आपने एलिमेंट स्टोर करके रखे हुए फर्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट फर्स्ट, यानी आपका अरे कहां से स्टार्ट हुआ है, लास्ट मतलब आपका अरे एंड कहां पे हुआ है। सपोज इफ यू हैविंग 10 एलिमेंट्स, सो फर्स्ट वैल्यू इज 1 एंड लास्ट वैल्यू इज 10, राइट। इफ यू स्टार्ट विद 0 तो फर्स्ट इज 0 एंड लास्ट इज 9, अगर 0 से स्टार्ट किया तो 9 तक जाएगा, लाइक दिस। सो इंटीजर I हैव टेकन वन वेरिएबल, आफ्टर दैट पाइवट, लो, हाई एंड टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर। सो मैंने तीन वेरिएबल लिए, एक पाइवट लिया, एक लो लिया है, एक हाई लिया है, एक टेम्प लिया है। सो हाई की जगह आप राइट भी ले सकते हैं, यू कैन टेक लेफ्ट और राइट, जैसे R और L लिया तो भी चलेगा, ठीक है। यू हैव टू टेक द वेरिएबल नेम एनीथिंग, लो, हाई, left, right, first, last, like this. Okay. Now what we have written, low is equal to first plus 1. आपका लो का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, जो लो है, जैसे अभी एग्जांपल में क्या होता, हमेशा फर्स्ट वैल्यू इज द पाइवट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाइवट इज इक्वल टू अरे ऑफ फर्स्ट, पाइवट का वैल्यू क्या रहेगा आपका, हमेशा फर्स्ट वैल्यू रहेगा, जो भी आपका अरे का फर्स्ट वैल्यू रहेगा वो एज ए पाइवट रहेगा। लो क्या रहेगा फिर, लो एंड लेफ्ट, लो लेफ्ट क्या रहेगा आपके जस्ट पाइवट का बाजू वाला वैल्यू, तो पाइवट के बाजू वाला वैल्यू क्या रहेगा आपका फर्स्ट प्लस वन, फर्स्ट प्लस वन करोगे तो आपका वो लेफ्ट वाला वैल्यू हो जाएगा। एंड हाई, हाई ने राइट, राइट यानी लास्ट वाला, लास्ट आपका क्या है, लास्ट एलिमेंट जहां पे भी होगा दैट विल बी काउंटेड पहले हाई काउंटर, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज, मैंने फंक्शन में लोअर हाई लिया है लेकिन एग्जांपल में हमने लेफ्ट और राइट लिया है, ठीक है। सो लोअर हाई की जगह आप लेफ्ट राइट भी ले सकते हो, ठीक है। नाउ आपका यहाँ पे मैंने लूप चलाया व्हाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, ये लूप कब तक चलेगा, ये पूरा लूप जब तक लो की वैल्यू हाई से छोटी है तब तक आपका ये लूप चलेगा। सो अंडर दैट लूप व्हाट वी हैव टू चेक, हमें क्या चेक करना है, एक उसके अंदर फिर से मैंने एक लूप चलाया व्हाइल अरे ऑफ लो इज लेस देन पाइवट। ये आपका लूप कब तक चलेगा, नेक्स्ट वाला लूप, कि अरे ऑफ लो का वैल्यू पाइवट से छोटा है क्या, कंडीशन वाइस वर्सा चलेगी। वाइस वर्सा मतलब हम जब लेफ्ट का वैल्यू आगे आगे बढ़ा रहे हैं तो क्या चेक कर रहे हैं कि लेफ्ट का वैल्यू हमें हमेशा पाइवट से बड़ा चाहिए, तो कंडीशन हमने चेंज कर दी, कंडीशन हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, कि अगर लेफ्ट अगर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो अगर पाइवट से छोटा है तो लो को आगे बढ़ाते चलना। दैट मीन्स अगर आपका लो का वैल्यू पाइवट से छोटा है तो आप क्या करोगे, लो को एक से आगे बढ़ाते चलोगे। दैट इज व्हेन द लेफ्ट वैल्यू इज लेसर देन द पाइवट वैल्यू, सो यू हैव टू मूव लेफ्ट वन बाय वन, एक एक इससे आप लेफ्ट को क्या करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, तो इसलिए ये वाला लूप लगाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फिर ऐसे करते करते आपको लेफ्ट का पोजीशन पता चल जाएगा, अब यू विल गेट द ग्रेटर वैल्यू रादर देन द पाइवट, ठीक है। आपको मिलेगा या फिर नहीं भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन योर डेटा। आफ्टर दैट सेकंड लूप चला है व्हाइल अरे ऑफ हाई इज ग्रेटर देन पाइवट। अगर आपका हाई वैल्यू दैट इज राइट वैल्यू जो लास्ट में पॉइंट करता है, ठीक है, राइट वाला वैल्यू हमेशा आपको क्या चाहिए, पाइवट से छोटा चाहिए, लेकिन वो बड़ा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक से आगे आगे इधर लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हाई, हाई अगर 10 पे है तो 10 पे जो वैल्यू अगर आपके पाइवट से बड़ा है तो आपको एक वैल्यू आगे आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। दैट मींस इफ ए ऑफ अरे ऑफ 5 ग्रेटर देन पाइवट वैल्यू, अगर आपके अरे ऑफ राइट करेक्ट, हाई की जगह आप राइट यूज करते तो राइट लिखिएगा यहाँ पे। सो अगर ऐसा होगा तो यू विल हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ हाई, दैट मींस जो आपका लास्ट में है राइट पॉइंटर, सो आपको राइट पॉइंटर पे क्या करना पड़ेगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन आपको एक एक वैल्यू कम करते आना पड़ेगा। दैट मींस अगर लास्ट में पॉइंट कर रहा है, इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन द वैल्यू ग्रेटर देन द पाइवट वैल्यू, फिर से राइट को आप एक से कम करो, फिर से राइट को आप एक से कम करो, ऐसे करते करते जब तक वैल्यू छोटा नहीं मिलता तब तक आपको आगे बढ़ना है। तो इसलिए दो लूप लिखे हुए हैं लेफ्ट और राइट वैल्यूज के लिए। अगर मिल जाता है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, तो आपको क्या करना है, एक दोनों वैल्यू राइट और लेफ्ट की वैल्यू क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप करना है तो यहाँ पे स्वैपिंग के लिए लॉजिक होता है इफ लो इज लेस देन हाई, अगर आपकी लो की वैल्यू हाई से छोटी है, दैट मींस अभी आपका लेफ्ट और राइट क्रॉस नहीं हुआ है, लोअर हाई क्रॉस नहीं हुआ, इसलिए अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू चेंज करना है, किसकी किसकी, लो की और हाई, लेफ्ट की और राइट की, दोनों की वैल्यू एक्सचेंज करना है। बट व्हेन लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, जब आपका लो हाई से छोटा रहेगा, तो यू हैव टू स्वैप दैट वैल्यू। तो ये स्वैपिंग का लॉजिक है, टेम्परेचर इज इक्वल टू ए ऑफ लो इज इक्वल टू अरे ऑफ हाई एंड अरे ऑफ हाई इज इक्वल टू 10। ये आपका स्वैपिंग का लॉजिक हो गया, यानी आपने दोनों वैल्यूज को एल और आर की वैल्यू आपने स्वैप कर दी। इन दिस केस यू हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ लो एज वेल एज हाई। स्वैप कर दी, स्वैप करने के बाद लो इज इक्वल टू लो प्लस 1 एंड हाई इज इक्वल टू हाई प्लस 1, ठीक है। ऐसे करते करते नाउ व्हाट यू हैव टू चेक, द नेक्स्ट थिंग इज ये कर लिया, ये करने के बाद द सेकंड थिंग इज कि इतना हो गया, यहाँ तक हमने चेक कर लिया। ये चेक करने के बाद नाउ यू हैव टू चेक कि आपका एल और आर क्रॉस हुआ है या नहीं हुआ है। दैट मींस इफ फर्स्ट इज लेस देन हाई, फर्स्ट यानी क्या आपका जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, इफ यू स्टार्टेड विद 1, ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज 1, ठीक है। हाई वैल्यू, हाई यानी क्या है कि अभी आपका एक्चुअली हाई कहां पे आया है,
ठीक है। इफ फर्स्ट इज लेस देन हाई, ठीक है, यानी जैसे ये आपका इतना बड़ा अरे है, ठीक है, ये आपका एक अरे दिया हुआ, ये आपका अरे है, जैसे ही आप बोलते हो कि आपका स्टेडी स्टेट में कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया एल और आर का, तो आप एक दूसरे को एक्सचेंज करते हो, लेकिन आपका एल और आर एक दूसरे को क्रॉस हो गया, एल इधर चले गया, आर इधर आ गया, आने के बाद आपका कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो आप क्या चेंज करते हो, आप चेंज करते हो एल वैल्यू, सॉरी आप चेंज करते हो आर वैल्यू विद द पाइवट वैल्यू। आर और पाइवट को जब आप चेंज करते हो तो आपके अरे के दो पार्ट में डिवीजन हो जाते हैं, तो ये एक पार्ट हो जाता है और एक दूसरा पार्ट हो जाता है, ठीक है, और ये बीच वाला जो एलिमेंट रहेगा दैट वुड बी द सॉर्टेड एलिमेंट, ये आपका सॉर्टेड एलिमेंट आता है। तो फिर आप क्या करते हो, ये इतना पार्ट उठाते हो, ये इतना पार्ट उठाते हो, फिर इसके ऊपर आप क्विकसॉर्ट अप्लाई करते हो, फिर इतना पार्ट उठाते हो, फिर इसके ऊपर आप क्विकसॉर्ट अप्लाई करते हो, ऐसे आप डिवाइड करते 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 एक एक एलिमेंट आपका सॉर्टेड में आता है। तो इसलिए डिवीजन के लिए आपका देखिएगा यहाँ पे रिकर्शन के कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं। सो इफ फर्स्ट इज लेस देन हाई, अगर फर्स्ट वैल्यू आपका हाई से छोटा होता है, सो देन अगेन यू हैव टू कॉल द क्विकसॉर्ट, क्योंकि आपका अरे दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद जैसे आप ये पहला पार्ट है, तो ये पहला पार्ट जब उठाओगे तो अगेन यू हैव टू अप्लाई द क्विकसॉर्ट। सो अगेन यू हैव टू अप्लाई द क्विकसॉर्ट, दैट मींस again you have to apply the quick sort, that means आपका देखिएगा अरे फर्स्ट एंड हाई, तो इतना पार्ट आपका उठेगा, दैट मींस यहाँ से यहाँ तक आपका पार्ट उठेगा और यहाँ पे आप क्विक सॉर्ट अप्लाई करोगे। अगेन इफ द लो इज लेस देन लास्ट, अगर लो का वैल्यू आपका लास्ट है, लास्ट सपोज 10 एलिमेंट्स है, तो आपका 10 से छोटा होता है लो, सो you can use again quick sort, so array low and last की आपका quick sort का फंक्शन यूज करोगे। so when function within the function, or we can say function call itself, देखिए quick sort के अंदर quick sort कॉल हुआ है, that means ये इसको क्या बोलते हैं, recursion। so quick sort it is also one of the example of recursion, and whole quick sort will be used the concept of divide and conquer strategy। so likewise you have to execute the function for quick sort, likewise we have to write the function for quick sort। so everybody got everything, everybody understood how to sort out the given set of element using the quicksort method, how to implement the function using the quicksort method. Hope everybody got it. So thank you one and all, thank you.